ये होता है ब्रेक लेने का नतीजा। ओके, चलिए आज कौन पढ़ना चाहता है फर्स्ट डे, जिसका नेटवर्क अच्छा हो, एंड हु कैन रीड, हु वांट्स टू रीड टुडे, जल्दी जल्दी जल्दी। I can do it. Yes, yes, sure. Who is that? Till my network goes. Rama Kabra. अरे आपका नेटवर्क नहीं जाएगा, आपने पहले ही बोल दिया till your network. No, 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 your network is No. great. Acha, from where? From the beginning? Yeah, so we are starting the magic book, and Yeah. thank you God for this book. Thank you Rhonda ji for this book, जिन्होंने ये book लिखी है, and thank you all the people who have contributed, many people who have contributed in giving quotations or in whatever way. Thanks to all of them, and I want to thank my friend Archana and Nidhi, जिन्होंने मुझे इस book में introduce करवाया. And I want to thank my parents, जिनके कारण मैं हूँ. Thank you so much, every one of you who have taken a chance, who have taken a stand for yourself and chosen to be a part of this journey. चलिए, let's start. One word changes everything? Yes, one word changes everything. Yes. लेकिन अभी तो मेरे को my discovery ये सब आ रहा है. No, just look at the screen. I'll see from. Yes. I'll read. Okay. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and have been misunderstood by almost all who read them. Audible? Am I clear to everybody? Yes, yes, totally, very clear. Yeah. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In the magic, Ron Brand reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28 journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you. Is it next page? Yeah, no matter where you are. Where you are no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. ठीक है. So अगर आप सूरत में हो, वाराणसी में हो, रांची में हो, नलहट्टी में हो, कैलकाटा में हो, बैंगलोर में हो, so no matter what you are doing, no matter अभी जो आपके circumstances हैं कैसे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, but हमारी लाइफ चेंज होने वाली है. The magic. So this is my intention for you too as well. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Acknowledgements. इन्होंने जब भी कोई बुक लिखी है, इन्होंने सबको मतलब इतना थैंक किया है, इतना इन्होंने एक्नॉलेज किया है टू एवरीवन कि मतलब तारीफे काबिले तारीफ है. What am I saying? Okay. So let's start with, do you believe in magic? अच्छा, एक बार सबको ही बता दो, क्या आप मैजिक में विश्वास रखते हो? Yes. 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 Everyone. Yes. 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 Yes, yes, yes. 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 Now I will believe in magic. Truly. Because अगर आप मैजिक में विश्वास नहीं रखते हो तो आपको मैजिक कभी नहीं दिखेगा. You have to first believe. अच्छा, बचपन में एवरीबडी, माने बचपन में हम लोग कितना हर चीज में विश्वास करते थे ना. छोटे में we did not ask questions. हाँ, परियां भी होती थी, मरमेड्स होते थे हमारे, मतलब अगर क्या बोलूं, सिंड्रेला की स्टोरी सबको क्यों पसंद थी? क्योंकि उसमें फेरी गॉड मदर आती है जो मैजिक करती है.
डिज्नी की जो डिज्नी की मूवीज होती थी, और अभी बड़े होके तो फिर हैरी पॉटर आ गया, मार्वल आ गया, बहुत कुछ आ गया। क्यों अच्छा लगता है ये सब। और हमेशा मतलब हम चांद को चंदा मामा, और मतलब हम जब खेलते भी थे ना तो ऐसा कुछ कि जिसमें मेक बिलीव हो, Make नॉर्मल नहीं believe. गेम खेलते थे, जिसमें कुछ ना कुछ हो कि हम कुछ बने हैं, हमारे जो हमारे कजिन्स हैं वो कुछ और बने हैं, हमारे जो सॉफ्ट टॉयज होते थे उनसे हम बातें करते थे जैसे वो हमारे फ्रेंड्स हो, हम बादलों में शेप्स ढूंढ लेते थे, कितना कुछ। और जब भी वो कलकत्ता में, तो जब भी वो, क्या नाम था उसका, पीसी सरकार करके था कोई मैजिशियन, yes, वो PC तो Sarkar. जब भी आता था हमें जाना ही जाना होता था उसका मैजिक देखने। तो बचपन में हम लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, छोटे छोटे मैजिक्स हमको बहुत दिखते हैं, ऐसा लगता है कि यस यू नो इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड। क्रिसमस तो खैर नहीं था हमारे जमाने में, सांता क्लॉज तो इतना शायद छोटे में नहीं जानते थे, बट हाँ, कृष्ण जी, रामायण, सुरसा और क्या क्या हम सब उन स्टोरीज में हम सबको बहुत ज्यादा मजा आता था। जन्माष्टमी आई तो कुछ करना है मतलब। और बड़े होकर क्या हो जाता है, एज वी ग्रो अप, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे वो धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाते हैं, वो एक दूसरा ही इल्यूजन में हम जीने लगते हैं। पहले छोटे थे तो सिंड्रेला एंड स्नो क्वीन, और बड़े हुए तो क्या अच्छा लगने लगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, मतलब क्या क्या अब लगता है वो सब तो बचकानी हरकतें थी, वो सब तो बहुत ही चाइल्डिश था। बट मैजिक इज देयर, वी जस्ट हैव टू बिलीव इट टू सी द मिरेकल्स हैपनिंग। फिर से बिलीव करना शुरू कर दें, फिर से अपने चाइल्डहुड वाले जमाने में जाना है। यस, चलिए रमा जी। Sorry. रमा जी, Sorry. Huh. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? शुरू से पढ़िए। दोज हु, Oh, sorry. Those who don't believe in magic will never find it. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe? Life was magical and exciting, and the smallest little things utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would be counting the days to the magical night of Christmas. Even then you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night. Somehow he did it, and he never let you down. Reindeers could fly, there were fairies in the garden, pets were like the people, toys, and personalities. Dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy, with your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. इजंट There इट, is an exquisite. सब बिलीव करते हैं ना इस बात में। लाइफ वाज रियली मैजिकल व्हेन वी वर यंग एंड वी वर चाइल्ड, और आई थिंक दैट While reading it, I was going back to my those childhood days. Literally, matlab, it was I was going back over एंड आई there. एम श्योर जिसका भी दांत टूटा होगा ना, आई एम श्योर उसने कुछ ना कुछ उसके साथ मैजिक करने की कोशिश की होगी। कितने लोग उसको मट्टी में गाड़ देते, कितने लोग क्या करते, कोई परी आएगी रात में कोई। एंड Matti सीरियस। mein. My daughter asks about that. फिर आएगी मम्मा। यस, तो बच्चों को तो हाँ बोलना ही चाहिए, जरूर आएगी परी, क्यों नहीं आएगी। उन्हें अभी डिसइल्यूशन नहीं करना है। सांता क्लॉज कैसे एक ही रात में सारे बच्चों के पास पहुंच जाता है, उसके पास तो बहुत बड़ा मैजिक है। Sahi. यस, पढ़िए। There is an exquisite feeling that of many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy. Thwart matlab kharab karna, our joy or magic of it all.
But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if just for a moment. I'm here to tell you that magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you've ever seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you could ever have given up on believing in the magic of. Yes, yes, You may. 1 minute. Yes. So अभी एक महीने के लिए ना फॉर 1 मंथ आप लोग सब लॉजिक्स भूल जाओ. मैजिक की वर्ल्ड में लॉजिक्स का कोई काम नहीं है. ठीक है, देयर इज नो लॉजिक वेयर देयर इज मैजिक. कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होगा, कैसे दिखेगा, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वो है. आप लोगों को ये सब कुछ नहीं सोचना है. forget all the logics. just see, just believe and see कि मैजिक कैसे होता है. अपने आप आपको 1 महीने की जर्नी में अपने आप दिखेगा. लॉजिक्स में मत जाना. डोंट गो इन रीजंस. ओके, यस, चलिए. You may not see a reindeer fly, but you will see the things you always wanted appearing before your eyes, and you will see the things you've dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part of it. Are you ready to experience the magic again? Are you really ready to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. Yes, so everyone, are you ready We to are experience ready. the magic again? Absolutely. Yes. Yes. With Yes. both hands. Yes. Yes, Didi. I am also Yes. super excited. Yes. Yes. जितनी जितनी बार ये सेशन करती हूँ ना, ऐसे भर भर के मैजिक्स होते हैं जैसे कोई पता नहीं बारिश हो रही होती है. ऐसे भी होते हैं नॉर्मल लाइफ में, बट सेशन के टाइम तो सीरियसली बहुत ज्यादा होते हैं. एंड बिकॉज मैजिक वर्क्स इन द इनविजिबल रेल्म. वो ऐसा रेल्म है, वो ऐसी दुनिया है जो अदृश्य है, इनविजिबल है. तो वो हमें दिखेगा नहीं कि कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, बट हो रही है वो दिखेगा. हमारे ड्रीम्स कैसे हमारी आंखों के सामने आएंगे. हमारे सेशन में बहुत सारे ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, बट ग्रेजुअली आई विल आस्क देम टू शेयर कि उन्होंने क्या क्या मैजिक्स देखा है अपनी लाइफ में एक सेशन में, सिर्फ एक सेशन के दौरान. तो ये होता ही होता है. एंड हाउ एवरीथिंग वीव्ड टुगेदर. मतलब सबने वो मूवी देखी होगी ना, ओम शांति ओम. तो Yes. किसी चीज को जब हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमें दिलाने की साजिश में लग जाती है. Yeah. अच्छा, मैं बहुत फिल्मी हूँ, मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता देती हूँ. आई एम वेरी फिल्मी एंड वेरी बॉलीवुडी टाइप्स. ठीक है, तो आप लोगों को ना सेशन में मूवीज के बहुत एग्जांपल्स मिलने वाले हैं. चलिए. सो अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. व्हाट इज द ग्रेट मिस्ट्री? यस, चलिए. रमा जी आप म्यूट हो. Sorry. इट्स ओके. The following passage from the Gospel of Matthew in Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have in abundance. Whoever does not have
even what he has will be taken from him. Yes. You have. एक मिनट, हाँ. Hmm. तो ये एक बहुत बहुत पुराने स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ था, जो मतलब काफी सालों से, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ, जिसके पास भी है उसे और दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास भी नहीं है उसके पास जो है उससे वह भी ले लिया जाएगा. तो अब ये सुनने में तो बहुत ही अन्याय और अनजस्टिस लग रहा है. ये क्या बात हुई? मतलब आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मतलब मैं और गरीब होती जाऊंगी, और जिनके पास मतलब सब कुछ है तो उन्हें और मिलता जाएगा. दिस इज नॉट करेक्ट. ये तो सही बात नहीं है. तो इसमें सिर्फ एक और एक शब्द की कमी है. एक शब्द जो यहाँ पर है वो छूट गई है. अनुजा बताओगी कौन सा शब्द है वो? Gratitude. यस, ग्रैटिट्यूड. तो द आंसर इज, जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा और वह अबंडेंस, समृद्ध होगा, अबंडेंस मिलेगी. एंड जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड नहीं होगा उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. यस रमा जी, आगे पढ़िए. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know that will be a new world will be opened for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is the one hidden word, gratitude. यस. Whoever has gratitude will be रमा जी, given more. थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए ना, Sorry. थोड़ा सा. So I find whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has, will be taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you will lose. And the promise of magic that will happen with gratitude is in these given words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more, but if you are ungrateful, verily, my punishment is indeed severe. यस. It doesn't matter. हमारे टेक्स्ट माने उसमें भी लिखा हुआ है, और कुरान से मतलब कुरान में भी है. हर रिलीजन, हर जगह आप अगर देखोगे तो यही सेम चीज पाओगे. अच्छा, इतने लोग है, सपोज देर आर 47 पार्टिसिपेंट्स नाउ, और मैं अगर पूछूं, ग्रेटफुल तो सभी होते हैं. हम लोगों को कोई कोई गिफ्ट देता है तो हम उन्हें थैंक यू कहते हैं. कोई हमारे लिए पानी लाता है तो हम उन्हें थैंक यू बोलते हैं. कोई हमारे लिए शायद कोई दरवाजा खोल देता है. इफ somebody is opening a door for us, we say thank you. We are grateful to our family, we are grateful to the God. But I don't think कि उसी से सिर्फ grateful या gratitude होती है. So as we will move forward ना, we will know the real meaning. असली मीनिंग क्या है कृतज्ञता का? असली किस लिए कृतज्ञता को क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? And are we in the real sense grateful or not? And कुरान में तो साफ लिखा हुआ है, अगर आप कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें और दूंगा, अगर आप कृतज्ञ हो तो सजा भी बहुत गंभीर होगी. It doesn't matter what religion you follow, whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and for your life. They are describing a fundamental law of science and the universe. हाँ रमा जी, आगे पढ़िए. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction,
which governs all energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of planets. Like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. So, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Yes, If you so think, one moment, हाँ, this is very important. अगर सभी ने जिसने जिसने भी सीक्रेट मूवी देखी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी. कोई बताना चाहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आकर्षण का नियम किसे कहते हैं? व्हाट डज इट माने क्या है, क्या नियम है वो? व्हाट इज दैट लॉ? वो लॉ क्या बोलता है? हाँ रमा जी, आप बोलना चाहेंगे? सिंपली पुट, जो मुझे समझ आता है कि आप अगर अच्छा, जो आप चाहते हैं मैनिफेस्ट हो, जो अगर आप चाह रहे हो कि मेरा बच्चा मेरा कहना माने, तो आप ये मत बोलिए तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, तुम ये बोलो हाँ, तुम मन में सोचो तो कम से कम पक्का कि हाँ, मेरा बेटा मेरे को बहुत रिस्पेक्ट करता है, मेरे बच्चे मुझे बहुत कहना मानते हैं मेरा. सुवर्णा जी, हेलो, मैं बोलना चाहती हूँ. हाँ बोलिए. हाँ, जो हम देंगे वही लौट कर आएगा. ओके, व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड. ठीक है, जो हम देंगे वही लौट कर आएगा. ओके. अच्छा देंगे तो अच्छा आएगा, बुरा देंगे तो बुरा आएगा. ओके. आकर्षण का नियम देखिए, बहुत क्लियर हो जाइए इस बात पे. अगर ये नियम सबको समझ में आ जाए तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो भी हम सोचते हैं या जो भी हम बोलते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं, अगर हम सोच भी रहे हैं तो थॉट्स ऑल्सो, तो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही होता है. वैसा ही एग्जैक्टली होता है. यूनिवर्स को अगर हम समझ ले कि वो एक जीनी है. जीनी सभी को पता है, जिन सभी को पता है. हाँ, तो अगर प्लीज म्यूट कर लीजिए ना. कौन म्यूट नहीं है? सुनीता राठी. अच्छा, प्रतिभा राठी, तुम्हारी तो आज बैंड बजेगी. सुनीता राठी. ओ अच्छा, सॉरी, सुनीता राठी. मैं कर देती हूँ म्यूट. ओके, चलो. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम सब कोई बहुत अच्छे से एकदम क्लियर समझ लीजिए. अगर आप बोलते हैं मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है, यस. सो अगर सुनीता जी प्लीज आप म्यूट रखिए खुद को. यस. अगर हम कहते हैं मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, जो भी हमारा यूनिवर्स है, जो जीनी है, वो बोलता है तथास्तु. यस, आपका पति आपको प्यार नहीं करता. दैट विल बिकम अ फैक्ट. मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है. यस, आपका बच्चा नहीं पढ़ता. इट्स अ फैक्ट. ठीक है. अगर हम बोलते हैं ओ माय गॉड, मैं तो दिन भर मैंने दिन ब दिन मोटी होती जा रही हूँ, कितना वजन बढ़ता जा रहा है. यस, आपका वजन बढ़ता जाएगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हमें किसी को नहीं मालूम है. किसी को भी नहीं मालूम है कि ये ऐसा लॉ है. मतलब इट इज नॉट अ फिलोसफी. मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रही. इट इज अ लॉ, फिजिक्स की लॉ है. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती है. जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सभी को पता है कि अगर हम कुछ भी अगर अपनी खिड़की से आज गिराएंगे तो वो नीचे ही जाएगा ना, ऊपर थोड़ी जाएगा. सेम सिमिलर वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ साइंटिफिक लॉ. इसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था. ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस होल बुक इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. यस, चलिए आगे बढ़िए रमा जी. रमा जी अनम्यूट कर लीजिए. If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills,
I think I'm coming down with something. He or she doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess. Or my marriage is in trouble. Then you must attract more of those experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of these things in your life, those things. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. यूनिवर्सल का मतलब कि ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इसके लिए मतलब ये नहीं है कि वो उससे अलग है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई रिलीजन के हो, कोई भी एज हो, एनीवेयर इट इज एप्लीकेबल, इट इज यूनिवर्सल, सेम फॉर एवरीवन, सभी के लिए एक समान. यस. You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. Remember, whatever. You reap what you sow, you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing the principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries include the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action has an opposite and equal reaction. ये तो फिजिक्स When में you सभी ने पढ़ा है ना, बचपन में या जवानी में, जब भी एवरी एक्शन हैज एन has an ऑपोजिट एंड equal इक्वल रिएक्शन, and हर कार्य का एक विपरीत और समान रिएक्शन होता है, प्रतिफल होता है. जो भी हम फेंकते हैं वो लौट कर हमारे पास आता है. ठीक है, लाइफ इज ऑलवेज अ सर्कल, एक सर्कल होता है लाइफ, कभी भी एक स्क्वायर नहीं होता कि हमने कुछ दिया और वो गुम हो गया. नो, इट विल ऑलवेज कम अराउंड. जो हम बोते हैं वो हमारे पास आएगा ही आएगा, जो हम फेंक रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो हमारे पास लौट कर आएगा ही आएगा. ठीक है ना? यस. when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an equal opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you've given, which means that the very action of gratitude sets the reaction of receiving. And the more sincerely and deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. वाओ, सो दिस इज सो नाइस. एवरीवन ध्यान से पढ़ो ये लाइन, वापस से ये लाइन पढ़ें प्लीज. देखिए, हमने बचपन में सभी ने ऑपोजिट्स भी सीखा था ना, ऑपोजिट्स, विपरीत, जिसे विपरीत शब्द कहते थे या ऑपोजिट्स बोलते थे. तो अगर हम बोले कि गिव, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? गिव का ऑपोजिट Take. टेक. यस, गिव, टेक, या टेक को और बेटर वर्ड में बोल सकते हैं रिसीव. Receive. यस. सो जब यहाँ पे एक लॉ बना है, इट इज ये भी पूरा फंडामेंटल फिजिक्स का लॉ है कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा. तो अभी हमने एक्शन क्या करना है? ग्रैटिट्यूड देना है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हमें मिलेगा. ठीक है, ये हो गया ऑपोजिट. और इक्वल, इक्वल क्या होता है कि हमने बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड दी तो बहुत ज्यादा हमें मिलेगा. लेकिन इसमें क्या होता है कि सपोज आपने किसी को 10 रुपए दिए या 20 रुपए दिए, अब आप सोचोगे कि आपको इक्वल 20 रुपए मिलेंगे कहीं से. नहीं, इसमें क्या होता है कि माने आपने जितनी श्रद्धा से, जितना प्रेम से दिया उसको, तो वो क्या होगा ना, वो 20 रुपए मल्टीप्लाई होकर. ठीक है, सिमिलरली खाली मनी के लिए नहीं, इन एवरीथिंग आपने थोड़ा सा कुछ ग्रैटिट्यूड दिया, बट इतने प्यार से दिया, इतनी शिद्दत से दी,
तो वो आपको उतना ही नहीं मिलेगा, वो आपको इतना ज्यादा वापस लौट कर आएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम ऑलवेज समझ के रखें। यस, व्हाट इज द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड? इसमें बेसिकली यही है कि किस किसने, हर महान व्यक्ति जितने भी हुए हैं, किस किसने ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया है। यस Should I continue? यस यस रमन। The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, Hinduism all have gratitude at its core. Muhammad said that gratitude for the abundance you received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said, whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heaven and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimos, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies within yourself. Tekus में 1768 History to is 1813, Shawnee Native American leader. 1813. So Leader. इतने लोग हैं हम लोग जो सुबह उठकर जमीन पर पैर रखते ही थैंक यू बोलते हैं। मतलब एक और सुबह हम उठे, वी आर अलाइव, यस थैंक यू, ग्रेट, दैट इज ग्रेट। एंड सुबह हम उठे हैं, हमने सांसें ली है, हमने एक और सुबह देखी है। तो मतलब हर कोई, आज इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आज नहीं उठे। तो हम माने वी आर सो blessed. Yes, we are so blessed that we have seen another day, another morning, another sunlight. If we see no reason for giving thanks, मतलब हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास everything what we need, our requirements are, हमारी पूरी requirements हमारी fulfill हो रही है। तो अगर उसके बाद भी अगर हमें थैंक्स देने का रीजन नहीं मिलता है, then the fault lies with us. Yes, आगे बढ़िए। History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about the monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. It is any wonder that so many of life's mysteries were revealed by Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulder of giants
Isaac Newton recently voted the greatest contributor to science and humankind was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. My discovery. My discovery. ये किसकी My स्टोरी है? ये रोंडा बर्न जो है राइटर जिन्होंने ये बुक लिखी है, ये उनकी स्टोरी है. वो बता रही हैं कि उन्होंने कैसे मैजिक को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude and what happens when you make gratitude a part of your life. It has been asked if I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when some person does something for me. The truth is, I was not a grateful person. I didn't know what being grateful really meant, and that just by saying words like thank you on odd occasions certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationships swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. While I was ये इन ऑथर के बारे में बता रही हैं, वो खुद अपनी स्टोरी बता रही हैं. वो बहुत ज्यादा कर्जे में थी. डेट मीन्स कर्जा. वो बहुत ज्यादा कर्जे में थी. इनके फाइनेंसेस, इनके जो पैसे की दुनिया थी वो बहुत हिली हुई थी उस समय. और मतलब हर इनका माने रिलेशनशिप्स के मामले में भी पूरा डावाडोल हो रहा था. किसी के लिए इनके पास टाइम नहीं था. एंड ये मतलब बहुत एकदम बहुत ज्यादा ही डिफिकल्टीज में, प्रॉब्लम्स में थी. यस. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends. But when I went on vacation, when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more gratitude I practiced, the more miraculous were the results. My life truly became magical. For the first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationship, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my life became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had it all previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. सो रोंडा जी की लाइफ तो चेंज हो गई. और यस, मुझे पता है आप बहुत जन को लग रहा होगा
कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड से इतना कुछ कैसे हो सकता है? एक ग्रैटिट्यूड से उनके वो पूरा कर्ज मुक्त हो गई, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, उनके सारे रिलेशनशिप्स ठीक हो गए एंड शी वाज सो हैप्पी। तो इज इट पॉसिबल कि सिर्फ एक ग्रैटिट्यूड से उनकी पूरी दुनिया चेंज हो गई? Yes, yes, it is possible because gratitude is seriously magical. ये क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होगा, क्यों मैजिक्स होंगे ग्रैटिट्यूड से? स्लोली एंड स्लोली वी विल नो ऑल अबाउट इट। बट एक चीज, एक वर्ड, उसको अपने एकदम पल्लू से बांध लेना है, दैट इज ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, ठीक है? शुक्राना, थैंक यू, धन्यवाद, जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन इसको हमें अपनी लाइफ में हमेशा के लिए अपने पास अपना फ्रेंड बना के रखना है। Bring the magic into your life. Now let's see how we will bring the magic into our life. Yes. पढ़िए रमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. अच्छा, Gratitude can magically. ये तो रोंडा बर्न बोल रही है। मैं जैसे 4 महीने से या आई थिंक 4.5 महीने से इससे जुड़ी हुई हूँ, और हम लोगों का एक ग्रुप है जिसमें अराउंड 350 लोग हैं, जो लोग मतलब काफी महीनों से इसमें हैं। और उनकी शेयरिंग्स जब सुनती हूँ ना, जब पढ़ती हूँ उनकी शेयरिंग्स के बारे में, सीरियसली आई कैन से कि आई हैव आल्सो विटनेस्ड। मैं खुद एक लड़की को जानती हूँ जिसने अपना कैंसर ठीक किया है। मैं खुद जानती हूँ जो डाइवोर्स के एज पर थी, जो आज एकदम हैप्पीली मैरिड है। कितने लोगों का, मतलब आज एक लड़की की शेयरिंग थी कि उसके आई में इन्फेक्शन हो गया था कल, उसने सिर्फ एक दिन में बिना किसी मेडिसिन के, सिर्फ ग्रैटिट्यूड से अपने आई के इन्फेक्शन को ठीक कर लिया। मतलब शी इज अंजलि करके है वो हमारे ग्रुप में। तो मतलब पैसों की दुनिया में, हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में इतने इतने मैजिक्स देखे हैं मैंने कि मतलब मैं बता नहीं सकती। तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास करके आगे बढ़िए, जस्ट स्टे इन द जर्नी एंड हैव फेथ। यस, ग्रैटिट्यूड कैन, Can magically. है ना, यही थी ना? यस, हाँ, Gratitude can magically turn your relationships and into joyful and meaningful relationships no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you prosperous so that you have more money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is that you want to do. In fact, whatever it is that you want to do, be, do, have. I'm sorry, मेरा 90% over हो गया मेरा data. I might not continue a little. Just 2 more minutes to read this. इट्स ओके, इट्स ओके। आई थिंक आपकी आवाज कट रही है। The magical power of gratitude, life into gold. नहीं नहीं, आप Can रहने you दीजिए, वो आपकी आवाज कट के आ रही है। इट्स ओके, आई विल कंटिन्यू टुडे। कल प्लीज कोई और रीड करेंगे, एंड एवरी डे कोई ना कोई रीड करेंगे, इट्स ओके, ठीक है? रीड करने से ना एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आप चले जाते हो। यस, so as we practice gratitude, you will understand why particular things in our life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless.
You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. So, सबके सब गायब हो गए. मुझे किसी की फोटो नहीं दिख रही है. मैं सुन रही हूँ ना सबको? Yes. Yeah, we are there. We are there very much. Okay, okay. चलो. Yes, Yes. Yes, okay, okay. So, कृतज्ञता का, ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लाना है सिर्फ, ठीक है? शुक्राना का एटीट्यूड, सिर्फ यही चीज चेंज करनी है. शिकायताना वाला एटीट्यूड भूल जाइए, छोड़ दीजिए. एवरी डे विल बी मैजिकल एंड मॉर्निंग में जब आप उठेंगे ना, यू विल फील सो एक्साइटेड टू बी अलाइव. ऐसा नहीं कि उठ गए, चलो वही तो दिन है, सेम तो सब कुछ होगा. ओके. इज योर लाइफ मैजिकल? क्या आपकी लाइफ मैजिकल है? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. तो हम सब अपने अपने एरियाज में चेक कर सकते हैं. मनी में जाकर चेक कर लीजिए, हेल्थ में, हैप्पीनेस में, करियर में, घर में, परिवार में, रिश्तों में. जहां जहां आपको दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, मतलब वहां पर हमने ग्रैटिट्यूड दिया है. जहां पर आपको लग रहा है नोक झोंक है, थोड़ी कमी है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा है, तो वहां पर जरूर ग्रैटिट्यूड की कमी है. इट्स अ सिंपल फैक्ट. When you are not grateful, you cannot receive more in return. ये तो शुरू में ही आ गया था. मतलब देना और उसका ऑपोजिट है पाना. तो ग्रैटिट्यूड नहीं दिए तो we are not receiving. We have stopped the magic from continuing in our life. When we are not grateful, we stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of our job, career, or business. To receive, you have to give. ठीक है ना? This is very simple. अगर पाना है तो देना पड़ेगा. It's the law. अपने लोग क्या सोचते हैं पता है? We think कि पहले मिल जाए फिर हम देंगे, है ना? सबकी यही सोच होती है. वो तो मुझे प्यार नहीं करता, Exactly. वो तो मुझे ये नहीं देता, वो तो पहले मुझे वो दे तब तो मैं उसके तरफ हाथ बढ़ाऊं. Ma'am, I say one ask question. In the end, we will do all the Okay. questions. Okay. आप अपना क्वेश्चन लेकिन याद रखिएगा. In the end, जिसके पास भी जो भी क्वेश्चंस है, we will take it, है ना? तो होता क्या है कि हम उल्टा सोचते हैं, ठीक है ना? लॉ क्या है कि जो आप बोएंगे वो पाएंगे, है ना? Whatever goes around comes around. जो हम दे रहे हैं वो लौट के हमारे पास आ रहा है. बट होता क्या है, हम सोचते हैं कि जो हमें मिल रहा है, जो मतलब फसल हो रही है, उसके बाद हम बीज बोएंगे. पहले हमें फसल चाहिए. तो दैट इज नॉट द लॉ. वो लॉ कभी वर्क करेगा ही नहीं. सो ग्रैटिट्यूड इज गिविंग थैंक्स, and without it we cut ourselves from the magic and from receiving everything we want in life. The bottom line of ungratefulness is that when we are not grateful, we are taking. ठीक है ना? जब हम ग्रेटफुल नहीं है, जब हम कृतज्ञ नहीं है, तो हम उस समय ले रहे हैं, उस समय हम दे नहीं रहे हैं. और क्या ले रहे हैं उस समय हम? We are taking things for granted. हमारे रिश्ते, हमारे पैसे, हमारे हेल्थ, सब चीज को हमने ग्रांटेड ले लिया है. कि बस ठीक है, उसमें धन्यवाद देने की क्या बात है? अगर आज मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स एकदम मतलब सलामत हैं, आई हैव गॉट हैंड्स, लेग्स, आईज, सब कुछ काम कर रहे हैं, तो इसमें मुझे ग्रेटफुल होने की क्या जरूरत है? ये तो भगवान सभी को देता है. पर क्या ऐसा होता है? क्या सभी को दिया है भगवान ने? क्या सभी के पास है? नहीं. तो we should always be grateful. The law of attraction says that like attracts like.
So if we take something for granted, we will be taken from as a result. जब हम चीजों को granted ले लेते हैं तो वो हमसे बदले में चीजें ले ली जाएंगी. Remember, whoever does not have gratitude, even what or she has will be taken from him or her. Most certainly, if you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. मतलब एक ऐसा एक लाइफ जिसमें ऑटोमेटिक, जैसे हम ऑटोमेटिक पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, बातचीत करते हैं, आजकल तो खैर फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप, ये भी नॉर्मल रूटीन में आ गई है. तो वैसे ही ग्रैटिट्यूड को इन सब में इनकॉर्पोरेट करना है, ऑटोमेटिक हो, कि वो ऐसी हमारी आदत बन जाए कि वो ऑटोमेटिक हो जाए. द मैजिक फॉर्मूला. Now, what is the magic formula? Knowledge is a treasure. 4 बजने वाले हैं. I think 15-20 मिनट और लगेंगे. खाली आज के लिए आप लोग थोड़ा सा बेयर करिए. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. ठीक है? तो यहाँ पर आके नॉलेज अगर हम सब ले लेंगे बट उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ज्ञान एक खजाना है, पर अभ्यास उसकी कुंजी है. Abhyas is very important. Ibn Khaldun al-Muqaddimah, scholar and statesman. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words, thank you. हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ना बचपन से, magic words, thank you, sorry, please, है ना? I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the 2 words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. मतलब जो ये thank you वाले words हैं वो हमारी पहचान बन जाएं, इतना यूज करना है. It is the bridge from where you are now to the life of your dreams. अगर आप यहाँ पर हैं और आपके ड्रीम्स यहाँ पर हैं तो वो थैंक यू का जो सिर्फ 2 शब्द वो ब्रिज की तरह काम करेगा. It will act as a bridge. The magic formula. अब what is the magic formula? Deliberately मतलब जान करके think and say the magic words thank you. बार magic words बोलिए thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. अगर शुरू में आपको लग रहा है ना इतना gratitude नहीं feel हो रहा है, अंदर से आ नहीं रहा है, तो अभी सिर्फ बोलना चालू करिए. fake करिए. धीरे धीरे we will make it. So fake it till you make it. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feelings that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. जो हम देंगे वही हम पाएंगे समान मात्रा में. That means if we increase our feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feelings. The truer the feeling, the more sincerely grateful we are, and the faster our life will change. When we discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when we see the magical results for ourselves, we will never want to return to the life we used to live. ये मेरे साथ है, मैं कभी वापस उस पुरानी दुनिया में नहीं जाना चाहती जहां पर gratitude नहीं था. If we practice gratitude a little, our life will change a little. If we practice gratitude a lot every day, our life will change dramatically and in ways that we can hardly imagine. Now, let's come to this magical book. एक बार मैं देख लूं कितना है.
ओके, ठीक है, आई थिंक 20-25 मिनट लगेंगे. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. सिर्फ शब्द बोलने नहीं है, उन्हें जीने हैं. John F. Kennedy, he was the 35th president of United States. In this book, there are 28 magical practices. ठीक है, 28 days हैं, हर डे की अलग अलग एक practices हैं, and they have been specifically designed so that we learn how to use gratitude's magical power to revolutionize our health, money, job, and relationships, and to make our smallest desires and our biggest dreams come true. We will also learn how to practice gratitude to dissolve problems and transform any negative situation. We will be captivated while we read this life-changing knowledge. But without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. ठीक है, 28 दिन तक रोज करना है, रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस होगी. एवरी डे हम लोग इसके साथ रहेंगे और ऐसे करना है जैसे वो हमारे सेल्स के अंदर घुस जाए, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाए, तभी इट विल चेंज आवर लाइफ एंड परमानेंटली. ठीक है, इट विल बिकम अ वे ऑफ अस, एक हमारी जिंदगी की आदत हो जाएगी. These practices are designed to be completed over 28 consecutive days. 28 दिन तक ये चलेंगे. ओके, इसको मैं थोड़ा ना शॉर्ट में करा देती हूँ. The first 12 practices, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ. Use the magical power of gratitude for what we have now and for what we have received in the past. तो शुरू के जो 12 दिन होंगे, 12 प्रैक्टिसेस होंगी, वो है कि जो अभी हमारे पास है और जो पास्ट में हमें मिला है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड. Why? Because unless we are grateful for what we have and what we have received, the magic won't work and we won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. ठीक है, ये हो गया first 12. उसके बाद के जो next 10 practices हैं, they will be for our desires, dreams and everything we want. ये जो हम क्लास कर रहे हैं, ये जो हम मैजिक बुक कर रहे हैं, इसका कुछ पर्पस है. ये हम सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बांटने और सिर्फ बुद्धि विलास करने यहाँ पर नहीं बैठे हैं. हम सबके कुछ न कुछ सपने हैं. वी हैव आवर ड्रीम्स, वी हैव आवर गोल्स एंड वी विल सी दैट दोज ड्रीम्स, वो सपने कैसे पूरे होंगे. यस, लास्ट 6 प्रैक्टिसेस, जो लास्ट के 6 प्रैक्टिसेस है, दे विल टेक अस टू अ होल न्यू लेवल. तब तक हम इतने मास्टर हो चुके होंगे ना. लास्ट में हमारे पास मैजिक वॉन्ड भी आएगा. वी विल गेट मैजिक क्यूज, मतलब यूनिवर्स से हम बातें कर सकेंगे. बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा. सो वी डोंट नीड टू क्लियर आवर कैलेंडर, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस एकदम स्पेसिफिकली क्रिएट की गई है टू फिट इनटू आवर एवरीडे लाइफ. हमें अलग से कुछ भी चला के कुछ बहुत मेहनत, बहुत कहीं जाना होगा उसके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो रिलैक्स एंड टेक इट इजी. बट इफ वी मिस अ डे, अगर आपने एक दिन वो एक्सरसाइज नहीं की उस दिन की, we will most likely lose the momentum of what we have done. So, if to ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. तो अगर आप एक दिन मिस करते हो तो आपको 3 दिन पहले जाना होगा और वापस से शुरू करना होगा. So be careful. Some practices are designed for the morning. कोई है throughout the day, and so read each day's practice first thing in the morning. तो हमारा आफ्टरनून में है, हमारा नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक चलेगा एक दिन.
कुछ प्रैक्टिसेस रात की होंगी, सो डोंट वरी, एंड जब होगी हम वो बता देंगे. If you don't want to follow the 28 magical practices consecutively, you can also use them in other ways. But no, 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 I will not prefer it. आपको exactly book जैसे बोल रही है, आपको वैसे ही करना है. ये बाद के लिए बताया गया है. जब हम लोग 2-3 बार बुक कर लेते हैं ना, तब हम लोग ये सब ऑल्टरेशंस कर सकते हैं. Not now. 28 डेज के बाद, आई थिंक 28 डेज के बाद जो होगा वो हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. अब हमें पढ़ना है कि हमारे ड्रीम्स क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो लोगों को भी थोड़ी थोड़ी झपकी आ रही है अगर, तो वो जाग जाएं, सीधे होकर बैठ जाएं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ड्रीम्स नाउ. अच्छा, many of the magical practices are designed to help us achieve our dreams. Therefore, we need to get clear about what we really want. Sit down with a computer? No. कंप्यूटर लेके, मोबाइल लेके नहीं बैठना है हमको, पेन और पेपर ही लेना है. And make a list of what we really want in every area of our life. Think through every detail of what we want to be, do or have in your life. ये जो बी, डू और हैव है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत बड़ी रिडल है. इसको हम कभी फुर्सत में, आई विल क्लियर इट फॉर यू. In our relationships, career, finances, health, and every area that is important to us, we can be as specific and detailed as we like. But remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. ठीक है? तो क्या करना है हमें? हमें सोचना है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना है, हमें कितने पैसे चाहिए, हमारे बच्चों के लिए हमारे क्या सपने हैं, हमारे खुद के लिए हमारे क्या गोल्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, एनीथिंग. ठीक है? लेकिन कैसे होगा वो अभी आपको नहीं सोचना है, जस्ट क्या चाहिए. If you want a better job, your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work. My God, सोच लीजिए कितना कुछ आप सोच सकते हैं. And where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost, fees, books, food, clothing, transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, and what you want to see and do, and where you want to stay, and the means by which you want to travel. ठीक है ना? अगर आपने लिख दिया मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे विदेश यात्रा करनी है, अरे यूनिवर्स को कैसे मालूम कि कहाँ भेजे आपको? वो कंफ्यूज हो जाएगा इसे. अब वो हो सकता है आपको श्रीलंका भेज दे. तो अगर आपको जाना कहीं है तो आपको पता होना चाहिए ना कहाँ जाना है. बी एग्जैक्ट, एकदम क्लियर. हर चीज यूनिवर्स को एकदम क्लियर बताना है. इफ वी वांट अ परफेक्ट पार्टनर, जैसे किसी की शादी नहीं हुई है और किसी को पार्टनर चाहिए, देन राइट डाउन एवरी डिटेल, कैसा चाहिए. If we want improved relationships, write down relationships जो हमें improve करने हैं और वो कैसे होने चाहिए. ठीक है? कैसे होने चाहिए पूरा डिटेल में. If we want more health, improved body condition, be specific what ways we want to improve your health or body. अगर आपको अपने सपनों का घर चाहिए तो हर डिटेल जो उस घर में होनी चाहिए,
एक एक डिटेल लिखिए, कितने कमरे, बंगला की फ्लैट, कितना स्क्वायर फीट, कितनी बैल्कनीज है उसमें, मंदिर कैसा होगा, कितने, मतलब कितना कुछ आप जो जो भी आपको चाहिए उसमें। इफ देर आर स्पेसिफिक मटेरियल थिंग्स विच यू वांट, कोई गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, अप्लायंसेस चाहिए, राइट देम डाउन। if you want to achieve something such as कोई एग्जाम पास करना है, कोई डिग्री चाहिए, कोई स्पोर्ट्स में गोल है, म्यूजिशियन बनना है, डॉक्टर, राइटर, एक्टर, साइंटिस्ट और बिजनेस पर्सन, और ऐसा कुछ भी है जो आपको अचीव करना है, राइट इट डाउन एंड बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल। स्पेसिफिक मतलब एकदम एग्जैक्ट, क्लियर, डोंट मतलब कंफ्यूज मत करिएगा। I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, big things. अब ये मत सोचिएगा कि मेरे बच्चे का बर्थडे आ रहा है, मुझे उसके लिए गिफ्ट चाहिए, तो वो एक छोटा चीज है, मैं क्यों लिखूं। आप हर छोटी छोटी चीज लिखिए ना, लिटिल थिंग्स, बिग थिंग्स, what you want at this moment, this month or this year. As you think of more things, add them to the list. And as we receive things, cross them. जब हमें वो चीज मिल जाती है तो उन्हें टिक ऑफ कर दें। an easy way to do a list of what you want, तो क्या कर सकते हैं हम, सपोज अब इतने सारे गोल्स हैं, जैसे मेरे तो काफी हैं, आप लोगों के भी काफी होंगे, तो आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हेल्थ, बॉडी का एक टॉपिक ले लिया, एक पेज दे दिया उसको, करियर एंड वर्क का दे दिया, मनी का एक टॉपिक दे दिया, रिलेशनशिप्स का दे दिया, पर्सनल डिजायर्स, खुद के भी तो बहुत सारे डिजायर्स होते हैं ना, तो वो अलग दे दिया, मटेरियल थिंग्स, एंड देन जस्ट ऐड द थिंग्स वी वांट टू ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते रहिए। when we get clear about the things we want, we are giving a definite direction to the way we want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. ठीक है? सपोज यूनिवर्स है, गॉड है, आप जिसको भी मानते हो, सुप्रीम पावर है, यस, और हमने अपने एकदम क्लियर बता दिया ये चीज मुझे चाहिए, ठीक है, अब जाकर यूनिवर्स को मालूम है, और अब जाकर वो रास्ता बन जाएगा, जहां जहां पर ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर्स से आपके पास वो चीजें आएंगी। सो बी रेडी फॉर द एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एडवेंचर वी हैव एवर बीन ऑन। सो दिस लास्ट पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे ड्रीम्स क्या हैं और हमें उन्हें लिखना है, पूरी लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो कैसे लिखना है मैं उसको प्लीज क्लियर करूंगी, क्योंकि क्या होगा कि हमें पता है लिखना है। मृदुला क्या हुआ, डोंट बी सो स्लीपी। ओके, अच्छा, सो कैसे लिखना है हमें वो मैं शेयर करूंगी। सो हमें जब भी अपने ड्रीम्स लिखने हैं ना, हमें ऐसे लिखने हैं जैसे वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है, एज इफ वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड देम। तो जस्ट अगर आपके पास कॉपी नहीं है, इट्स ओके, अभी मैं ग्रुप में भी लिख दूंगी कि कैसे लिखना है हमें। तो सपोज करिए कि आपको अपने सपनों का घर चाहिए कोई, ठीक है, तो आप लिखोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, 3 बार शुरू में ही थैंक यू लिखना है। क्यों लिखना है मैं जरूर वो बाद में डिस्कस करूंगी आपसे, क्यों होता है 3 बार थैंक यू, डोंट वरी, वी विल नो व्हाई, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू that I have a beautiful home of 5,000 square feet on Baliganj Avenue, या जो भी आपको जहां चाहिए, ठीक है। It is a huge bungalow. I have a swimming pool. I have इतने rooms, जो जो आपको उस घर में चाहिए, ठीक है। Thank you, thank you, thank you that my son has passed his CA intermediate exam with brilliant numbers. We are all very happy and he is now studying for his finals, जो भी। Thank you, thank you, thank you that
that I'm traveling to Europe, and finally I am seeing Switzerland. It is so beautiful. And जो भी आपको जो भी लिखना है अपने ट्रैवल के लिए, अगर किसी के ट्रैवल के हैं, thank you, thank you, thank you that I have an amazing relationship with my husband. We share very romantic moments together, and we share quality time with each other. We are spending जो भी आपके जो भी ड्रीम्स है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ. Yes, some people have raised hands. I cannot see कौन है. या मैं हेमा बात कर रही हूँ मैम. बिल्कुल, बोलिए हेमा जी. जी, मुझे ये पूछना था कि आप जो बोल रहे हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि अब्रॉड के लिए थैंक यू बोलना है पहले, लेकिन ये कितने दिन तक लिखना है? जैसे जब तक नहीं जाते हैं तब तक लिखते जाए या नहीं, रोज नहीं लिखना है आपकी. हाँ, आपको एक बार लिखना है सिर्फ. ठीक है, एक जगह एक कॉपी, जो आपकी ड्रीम्स की बुक होगी या डिजायर्स की बुक कॉपी होगी, जो भी आप कोई डायरी ले लीजिए या कोई कॉपी ले लीजिए, वहां पर आपको सिर्फ एक बार नोट डाउन करना है. हाँ, वही थोड़ा डाउट आ रहा हाँ, था. आपको रोज नहीं लिखना है. वही जब तक नहीं जाते तब तक लिखते जाए ऐसे पूछ रही हूँ. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ. आपने एक बार लिख दिया, अब आपको जैसे आज आपने लिखा, अब आपको कल याद आया कि इसमें मैं ये भी ऐड कर देती हूँ. हाँ, आप उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ. आपका वो ड्रीम. हाँ, तो ये जो है ना अब्रॉड जाने का, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया अब्रॉड जाने के लिए थैंक यू लिखना, तो क्या ऐसे भी लिखना है कि उसका ईयर या मंथ कि भाई 2022 या मार्च 22 ऐसे कुछ लिखना है या नहीं. अभी थैंक यू शुरू फॉर में अब्रॉड. यस, अब्रॉड नहीं. देखिए, यूनिवर्स को नहीं पता अब्रॉड कहाँ. अगर आपको श्रीलंका भी अब्रॉड ही हो जाता है, ठीक है ना, तो अब्रॉड मतलब कि नहीं, देश जैसे टाइम भी लिखना है क्या? नहीं, टाइम अभी आपको नहीं लिखना है. अभी शुरू में टाइम हमें नहीं लिखना है कि हमें कौन से साल में जाना है या 2 साल में, 1 महीने में, नहीं. ठीक है, अभी आपको सिर्फ जो करना है, जहां जाना है. बट बी वेरी क्लियर, खाली अब्रॉड मत लिखिएगा. ठीक है, आपको अगर स्विट्जरलैंड जाना है, स्पेन जाना है, इटली जाना है, जहां भी जाना है, आपको मालदीव्स जाना है, बाली जाना है, वो सब जगहों का नाम लिखिए. डोंट राइट. अच्छा, और अगर सॉरी बट अगर है ना अगर हम लोग ऐसे सब जगह का नाम लिखे तो कुछ जगह हम लोगों को फ्रेंड्स के साथ जाना है और कुछ जगह ही हम लोगों को फैमिली या ओनली हस्बैंड ऐसे जाना रहता है, तो वैसे लिखने के टाइम पे भी ऐसे कुछ लिखे कि थैंक यू फॉर मालदीव्स विथ हस्बैंड, थैंक यू फॉर गोवा विथ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लिखना है या ऐसे? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. मेरा भी एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है. बिकॉज एब्सोल्युटली मैं गोवा हस्बैंड के साथ तो चली गई एक बार, अब मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है. फ्रेंड्स के साथ भी चली गई, लेकिन दोबारा जाना है. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. आप लिखिए ना, एक पॉइंट में लिखिए. अपने पास मतलब कंजूसी नहीं करनी है लिखने में. आप आराम से लिखिए यस कि थैंक यू दैट आई एम गोइंग टू गोवा विथ ऑल माय फ्रेंड्स. अगर आपको उनके नाम पता है तो आप नाम भी लिख सकते हो. नहीं, तो जैसे 2-3 ग्रुप होता है तो उस ग्रुप का ही नाम लिखे या ओनली फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं? ओनली फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं. हाँ, जैसे कोई भी फ्रेंड्स के साथ हम लोग जा सकते हैं ऐसे. वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम केवल ऑन वही ग्रुप के साथ जाना ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. अगर आपको कहीं हस्बैंड के संग जाना है, आप उसमें लिखिए थैंक यू दैट आई एम गोइंग देयर विथ माय हस्बैंड एंड वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम टुगेदर. ठीक है. यस. ओके. थैंक यू. यस. अच्छा, ड्रीम्स लिखने में किसी को भी कोई क्वेश्चंस है, आज क्लियर कर लीजिए, नहीं तो कल 2:50 पर मैं रोज आ जाऊंगी यहाँ पे. रोज एवरी डे आई विल बी हियर 2:50 पर. तो जिसको भी कोई क्वेश्चंस होते हैं वो उस समय आकर पहले ही थोड़ा आ जाए, क्योंकि 3 बजे से हम रीडिंग स्टार्ट कर देंगे. 3:45 तक क्लास ओवर हो जाती है. उसके बाद भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग तब कर सकते हैं. ठीक है, अभी किसी को और कुछ पूछना है? मुझे पूछना है. हाँ, आज ही लिखना है ड्रीम्स? आप जितना जल्दी लिखो. ठीक है, जैसे सपोज अभी आपको 2 या 3 ही याद आ रहे हैं. हाँ, वही मैं बोल रही थी. हाँ, तो आप थोड़ा गैप छोड़ दो ना. ठीक है. हाँ, जैसे अभी सब ड्रीम से पहले थैंक यू लिखना है. यस. ईच एंड एवरी ड्रीम.
यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट है लिखना, और प्रेजेंट टेंस में लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ये नहीं लिखना आई वॉन्ट, फ्यूचर में भी लिखना है आई ऑलरेडी, अभी हो रहा है, एज इफ, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, थैंक यू। यस। अच्छा, वो कौन थी ना, शिल्पा जी थी ना, जो जिन्हें कुछ क्वेश्चन था। हाँ शिल्पा जी, आप पूछिए। शिल्पा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। जी, हाँ मैं बोलिए। पूछ रही थी मैम कि अगर हम कोई भी पर्सन हो, एज अ पेरेंट्स, एज अ हस्बैंड, ठीक है, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं बट बदले में हम लोगों को बेस्ट नहीं मिल रहा है, तो मतलब कैसा रिएक्शन करना चाहिए? ये बुक ने शुरू में फर्स्ट पेज में हमें बताया कि जैसा या हम देते हैं, जो हम देते हैं, वही लौटकर हमारे पास आता है। जी जी, आई नो, बट हम अपना बेस्ट दे रहे हैं बट फिर भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो व्हाट? तो इसका मतलब है कि हमारे ग्रैटिट्यूड में कहीं ना कहीं कमी है। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे हमारे पास कि मतलब मैं तो बहुत अच्छी बहू हूँ लेकिन मेरी सास उतना मेरा मतलब मुझे प्यार या नहीं करती है, या मैं अपने पति पत्नी के रिश्ते में मैं पूरा कितनी कोशिश कर रही हूँ, बट मैं बोलूंगी प्लीज कुछ दिन तक सिर्फ आप बुक जो बोल रही है वो करिए। अगर आपको 15 दिन के बाद भी सेम क्वेश्चन रहे, देन यू अगेन कम बैक टू मी। हमें सब सवाल के जवाब इसी बुक में मिल जाएंगे। एवरी क्वेश्चन विल गेट आंसर्ड, और 28 डेज के बाद ना आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन विल लेफ्ट अनआंसर्ड। किसी के पास भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हर चीज का कारण है, और वो कारण हमें मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। जस्ट बी इन द जर्नी, जस्ट हैव फेथ। ठीक है, थैंक यू। यस। क्योंकि अभी हमने सीखा ही नहीं ना कि ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, कैसे रिश्तों में सुधार लाना है, क्यों क्यों कहीं पर कमी है, क्यों कहीं पर अबंडेंस है ना। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानेंगे, सारे एरियाज में मैजिक्स होंगे ही होंगे। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यस, ओके, यस। तो आज का डे 0, उसका टास्क यही है कि अपना अपना ड्रीम्स, एंड डोंट टेल मी कि मेरे पास ड्रीम्स नहीं है। कोई के भी ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ड्रीम्स, अगर ड्रीम्स नहीं है ना तो ये बुक आपके लिए नहीं है। सीरियसली, खाली हम अच्छा सोचने, अच्छा महसूस करने के लिए नहीं है। हमारे ड्रीम्स हैं। अगर हमारे सपोज सपोज हमें पैसों की जरूरत नहीं है, हमारे को गाड़ी बंगला ये सबसे इतनी मोह माया नहीं है, तो रिश्तों में तो सुधार सभी को चाहिए, प्यार तो सभी को चाहिए। तो कितने कुछ ऐसे हैं जो हमारे ड्रीम्स वैसे हो सकते हैं। तो एवरीवन नोट डाउन, गो टू योर माइंड एंड नोट डाउन व्हाट यू वांट। एक बार रफ में खाली लिख लीजिए क्या क्या चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको फॉर्म करते रहिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और प्रेजेंट टेंस में। अगर आपको कभी नहीं समझ में आए कैसे लिखना है, आस्क मी एनी टाइम कि ये ड्रीम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखूं, आई विल टेल यू। एक बार एटलीस्ट नोट डाउन करना स्टार्ट करिए कि क्या क्या चाहिए खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए कितना कुछ चाहिए होता है, अपने परिवार के लिए, लेकिन पहले खुद। ठीक है, अगर हम खुद का प्याला नहीं भरेंगे तो हम दूसरों को भी शायद नहीं दे पाएंगे। तो अपने लिए पहले सोचिए। खाली दूसरों के, अगर आपके पास 500 रुपए हैं और दूसरों आपको कोई और को 1000 रुपए देने हैं तो कहाँ से होगा। तो खुद का प्याला तो पहले भरेंगे ना। ग्रैटिट्यूड से इतना अपने आप को भर लेंगे, तब हम जाकर दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। ओके, एवरीडे की वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग आपको क्लास में मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर किसी दिन आपका मिस हो जाता है क्लास, तो वो रिकॉर्डिंग आपको सुननी है और फिर आपको उस दिन की प्रैक्टिस जरूर से करनी है। अगर कोई भी 30 डेज तक कंटिन्यू नहीं रहता है बुक में, और फिर बाद में अगर उसको मैजिक्स नहीं दिखते हैं ना, तो वी कैन नॉट हेल्प इट। क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स, कौन कितनी शिद्दत से, कौन कितने पूरे एकदम नियम से फॉलो कर रहा है। देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द कॉल,
और हर किसी के लाइफ में मैजिक आएगा, किसी के पहले आएगा, किसी के बाद में आएगा, बट आएगा जरूर। ओके, तो आएगा जरूर। कौन कितनी विश्वास से, कितने उससे उसको करेगा, खाली सिर्फ उसी का फर्क है। ओके एवरीवन, अगर किसी के और क्वेश्चंस है ना, प्लीज आराम से कल पूछिएगा। 2:50 पे आई एम देयर ऑन दिस सेशन, ठीक है। एंड रमा जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग फॉर अस, इट वाज ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू, जो भी नए लोग हैं एंड मेरे पुराने मैजिक वॉरियर्स। मुझे आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। इट्स वेरी नाइस टू सी एवरीवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है ना कि प्रॉब्लम हो रही है? नहीं दीदी। नो नो ओके ओके, कभी भी ऐसा लगे तो हम लोग मतलब चेंज कर सकते हैं, हिंदी में कभी कभी रीड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट आई विल ट्राई कि लैंग्वेज में किसी को प्रॉब्लम ना हो। ऐसे भी हिंदी हो ही रहा है ना साथ साथ में, तो यस, वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ, हाँ, तो तो इट्स अगर किसी को नहीं भी समझ बिकॉज आती ना उतनी, तो ऑनेस्टली कोई बोल नहीं रहा होगा कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि ठीक है, साथ साथ में हिंदी हो रहा है। यस, बस क्योंकि हाँ, मेरे ख्याल से सुवर्णा जी समझाना जो आप करते हो ना, तो वो मिक्स करते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। हाँ, बिकॉज किस वर्ड्स में कोई ना कोई अब गॉस्पेल है, नॉट एवरीबडी इज वेरी, लेकिन जब आप उसको इस तरह से समझा देते हैं हिंदी में भी, मिक्स्ड में भी, देन इट्स, क्योंकि उसका एसेंस आ जाना चाहिए, जो बस मेन उसमें जो मेन एसेंस बात है, है, हाँ, वही मैं समझा देती हूँ। वही अगर बस, अपने वही एक आपने, एक शब्द पर जाएंगे तो फिर हाँ, फिर वो बहुत टाइम लग वो जाएगा, फिर बह जाएगा, हाँ, फिर रह जाए। राइट, करेक्ट, और ये परफेक्ट। ऐसे भी इंट्रोडक्शन था, इसलिए इतना ज्यादा था। वो जो चैप्टर्स हैं रोज के ना, वो 2 पेज 3 पेज ऐसे ही है, दे आर वेरी सिंपल लैंग्वेज में है, डोंट वरी। शिल्पा की आप स्माइल क्यों नहीं करती है? आप स्माइल किया करिए, यू हैव अ ब्यूटीफुल फेस एंड स्माइल विल रियली सूट यू। ओके, चलिए, It was a beautiful session. Thank you so much, Suvarna. थैंक Thank you. थैंक यू सो Thank मच। you, Didi. Thank you. Thank you. Thank you. प्रे नहीं करेंगे दी थैंकिंग प्रे Yes, Prayer. gratitude. Thank you, Ramaji. Thank you so much, ma'am. Thank you. Let's join our hands and say gratitude. जिसको भी आप मानते हो, जिस भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उसको रोज थैंक्स करके ही फिर हम यहाँ से बाय बाय करेंगे। ओके, Thank you. Thank you, Saiba. सो थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, कीप पोस्टिंग वॉट एवर डाउट्स यू हैव, और नहीं तो ग्रुप हमारा कल से 2:50 पे मैं आई जाऊंगी, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, बाय बाय Okay, thank you, ma'am. एवरीवन, Thank you. Thank you. बाय Thank you, Didi. थैंक यू, बाय बाय। Thank you. Thank you.